بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے راحت اور اس کی رائٹر ہے عشا افضل۔ یہ ایک نیو ناول ہے جو مجھے بولا گیا تھا کہ میں اس کو سٹارٹ کروں، اور میں نے دیکھا ہے یہ کسی چینل پر بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ان فیوچر ڈیلیٹ ہو جائے باقی ناولز کی طرح۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ساتھ ساتھ ناولز کو سنیں تاکہ جلد ہی اس کو ختم کر کے ہم لوگ کوئی اور نیا ناول سٹارٹ کریں۔ ویسے تو اس کے ساتھ بھی میں اور ناول سٹارٹ کروں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لے ناول، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ ناول اچھا ہے اور اس کو مجھے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوتا ہے، اور میں آپ کو اس فرسٹ ایپیسوڈ کے تھرو یہی کہوں گی جتنے بھی لینتھی ناول ہے، جتنے بھی لانگ ناولز ہیں، وہ آپ لوگ کائنڈلی ساتھ ساتھ سنا کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ شفٹنگ وغیرہ کرنی پڑے ناولز کی، تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر بعد میں آپ لوگ پوچھتے ہو کہ کہاں گیا یہ والا ناول، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بہت زیادہ بزی ہوں ان دنوں، تو آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈز میں بھی نہ پرووائڈ کر سکوں، لیکن جتنی میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈز پرووائڈ کر سکی میں آپ لوگوں کو ضرور کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ تاریخ راتوں میں، ویران دلوں میں، جب بجلی کا کوندہ لپکتا ہے، جب گرج کا سماں ہوتا ہے تو روشنی کے ساتھ عبرت ہوتی ہے اور تاریکی میں وحشت ہوتی ہے۔ اس میں گہرا راز پوشیدہ ہوتا ہے، اسی میں رات کا مقصد عیاں ہوتا ہے۔ عشا افضل۔ رات کے تاریک پہر، جب چاند کی مدھم چاندنی میں بھی اندھیرا موجود تھا، جب ستاروں کی چمک بھی اندھیرے کو کم نہ کر پا رہی تھی، وہی اندھیرا جو روشنی کو مات دے دیتا ہے، اور وہی اندھیرا جو روشنی سے مات کھا جاتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کے اس چکر میں گھومتے ہوئے وقت کے اس لمحے اس کمرے میں موجود نفوس میں سے ایک دوسرے کی بڑبڑاہٹ سن کر تیزی سے اٹھا۔ وہ وجود سوتے ہوئے بھی کرب کی انتہا پہ تھا، وہ کرب جو سوتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ کمرے کے سنسان ماحول میں ان سانسوں کی بے ہنگم آواز نے عجیب وحشت سی برپا کر رکھی تھی۔ رکو، مت جاؤ۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے بس یہی الفاظ دہراتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، سنو، رک جاؤ، نہیں جانا، پلیز۔ وہ خواب میں منت کر رہی تھی۔ دوسرے وجود نے اذیت سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جھنجھوڑا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی؟ وہ تو اس دنیا میں تھی جہاں اس کو پچھتاوے کے جال نے گھیرا ہوا تھا۔ دوسرے وجود نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے مزید جھنجھوڑا، جس پہ اس نے آہستگی سے آنکھیں وا کی۔ ان آنکھوں کے کھلتے ہی ان میں واضح بے چینی نظر آئی۔ نگاہیں خوبصورت سیلنگ پہ موجود نقش و نگار پر مرکوز ہوئی۔ ایک لمحے کو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور دوسرے ہی لمحے ہوش کی دنیا میں واپس آتی وہ تیزی سے اٹھی۔ دوسرے وجود نے اس کو تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے سنبھالنے میں نہ آئی۔ بیڈ پہ موجود تکیوں کو زمین پہ پھینکتے، مخملی بیڈ شیٹ کو نوچتے، ڈریسنگ پہ موجود سامان کو زمین بوس کرتے وہ اس سب سے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبر کرو، وہ وجود صرف یہی کہہ پایا۔ صبر؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ کسی کو قتل کرنے کے بعد قاتل کو صبر آ جاتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ قاتل ہی تو تھی، اور ایک قاتل کا مقتول جب خواب میں بھی پیچھا نہ چھوڑے تو وہ قاتل کیسے سکون سے سو سکتا ہے؟ وہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، دلاسا دینے کو ایک بار پھر اس وجود نے اس کو دیکھتے ہوئے دہرایا، حالانکہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ کسی طور مرہم ثابت نہیں ہو سکتے۔ میں ہوں وجہ، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ میری وجہ سے؟ اس سے اگلے الفاظ بولنے سے قبل ہی اس کی ٹانگیں شل ہوئی اور وہ بے جان سی زمین پہ گرتی چلی گئی۔ پلکوں پہ ٹھہرے آنسوؤں نے اس کے شفاف چہرے کو بھگونا شروع کیا۔ ان شفاف قطروں کی نمی اس کے اندر کی تکلیف کو نکالنے سے قاصر تھی، کہیں گزری راتوں کی مانند یہ رات بھی اس کے لیے تاریخ ثابت ہونے والی تھی۔ دوسرا وجود جانتا تھا کہ یہ صرف پچھتاوا نہیں ہے، یہ محبت ہے، یا شاید محبت کی انتہا، اور یہ محبت اب اسے پوری عمر سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ صاف شفاف پانی میں ایک انتشار برپا تھا۔ دوپہر میں سورج کی کرنوں سے چمکتا پانی اس سرد موسم میں ان کرنوں کی گرماہٹ کے باعث نیم گرم ہوا، لیکن اس پانی میں موجود وہ وجود سرد و گرم کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں کو ماہرانہ انداز میں ہلاتے سوئمنگ پول کی سطح پہ تیراکی کر رہا تھا۔
उस बड़े स्विमिंग पूल का ज़ेरी ज़मीन हिस्सा आसमानी रंग का होने के बायस वो बेरंग पानी भी आसमानी सा मंजर पेश कर रहा था। धूप से चमकता आब उसके चेहरे पे कतरों की मानित चमक रहा था। मुकम्मल खामोशी में सिर्फ पानी के शोर की आवाज़ बरपा थी। अचानक वो सतह से डुबकी लगाता पूल के अंदर गायब हुआ और फिर चंद लम्हे वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। ना पानी की आवाज़ थी, ना ही सांस की। अलार्म की मध्यम सी आवाज़ पे वो वजूद यकदम झटके से वापस सताए आप पर आया। सर को दाएं बाएं हिलाते उसने पानी के छींटों को इर्द गिर्द बिखेरा और उस पूल से बाहर निकला। काली बनियान के साथ काले ट्राउज़र में मलबूस वो वजूद अपने पास बालों को हाथों से सहलाता, उन पे मौजूद पानी के कतरों को झटकता, शीशे के टेबल पे मौजूद अलार्म को देखकर लंबा सांस भरता रह गया। उस लम्हे उसे खुशी का एहसास हुआ, मगर बस चंद लम्हे। उसकी हर खुशी आर्जी होती है, उसकी मुद्दत सिर्फ चंद लम्हे ही होती थी। उसे अलार्म की टाइमिंग अब मज़ीद बढ़ानी थी। उसका टारगेट ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। बाथ टॉवल से कसरती जिस्म पे मौजूद पानी को खुश करके वो अपने रूम से महलका वाशरूम में घुस गया। चंद मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाथरूम में बाहर आया। उसी वक्त दरवाजे पे घंटी बजी, जिस पे ऑटोमेटिक दरवाज़ा खोलकर उसने जैस्मीन और उसके बेटे को घर में दाखिला दिया। ये उनके आने का वक्त होता था। जैस्मीन अपने बेटे के साथ किचन की जानिब बढ़ गई। वो अलमारी की जानिब आया और कपड़े निकालकर ड्रेसिंग में घुसा। और फिर जो हदीद आलम बाहर आया वो स्विमिंग पूल के रफ हुलिये वाले हदीद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ग्रे हाई नेक के साथ काली जीन्स और काले कोट में मलबूस वो अब फ्रेश और निखरा सा दिखाई दिया। हेयर ड्रायर से बालों को खुश करके उनको जेल से सेट किया, फिर महंगे परफ्यूम्स की कलेक्शन से एक परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया। एकदम पूरे कमरे में दिलसोज खुशबू फैल गई। स्याह लोफर्स पहनकर वो कमरे से बाहर आया और डाइनिंग टेबल की जानिब चल दिया। डाइनिंग टेबल की सदारती कुर्सी पर जाकर बैठते ही जैस्मीन ने उसके सामने उसका पसंदीदा नाश्ता रखा तो वो संजीदा तासुरात से नाश्ता करने लगा। मामा, हदीद साहब के जबड़े नहीं दुखते, जब देखो अकड़ कर रखते हैं, किचन का सामान अंदर लाकर रखते। जैस्मीन के छोटे बेटे डेविड ने मुंह बसोर कर कहा। जब देखो लाड साहब का चेहरा सख्त तासुरात लिए ही होता था। बेटा, उनके भी अपने ही दुख हैं। दुनिया की नज़र में वो लाख अमीर सही, मगर हकीकत तो ये है कि उन्हें सकून ही मुयस्सर नहीं है। जैस्मीन उसकी कैफियत से मुकम्मल ला इल्म तो नहीं थी। तहम्मुल से नाश्ता करते ही वो कुर्सी से उठा, दरवाजे के पास मौजूद गैली से अपना लॉन्ग कोट उठाकर पहना और ऑफिस के लिए निकल गया। उस खूबसूरत, शानदार मगर वाहिद मंजिला घर के पार्किंग एरिया में आकर उसने खुद अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाली और ऑफिस के लिए रवाना हुआ। वो मसनूई ज़िंदगी जी रहा था, या शायद गुजार रहा था, क्योंकि ज़िंदगी को जीना तो उसने कई सालों से तर्क कर दिया था। क्या है ये ज़िंदगी, क्यों उसको बस गुजार ही रहे हैं। बर्लिन की सीधी, साफ़ सुथरी और वसी सड़कों पर दौड़ती उसकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। सर्दियों का आगाज़ हो चुका था। हवा भी नमी से भरपूर थी। हल्की सी धुंध हर जानिब छाई हुई थी। स्टीयरिंग पे दायां हाथ धरे अपने बाएं हाथ से फ़ोन पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए वो खासा मसरूफ़ दिखाई दिया। उसकी सारी तहम्मुल मिजाजी सिर्फ खाने के दौरान ही होती थी। किसी की नसीहत थी जिस पे अमल करता वो खाना पुरसुकून सा खाया करता था। ऑफिस के बाहर झटके से गाड़ी रोकता वो बाहर आया। मजबूत बाजुओं से दरवाज़ा बंद करते सामने मौजूद आदमी की जानिब चाबी उछालते वो अंदर बढ़ा और मुस्कुराकर उसको देखते उस आदमी ने फिर अफसोस से उसको देखा जो आज भी उसके हेलो का जवाब दिए बगैर अंदर जा चुका था। ऑफिस में कदम रखते ही सबने उसको अपने मुल्क और सकाफत के हिसाब से सलाम किया, जिसका जवाब वो सिर्फ सर के खम के साथ ही दिया करता था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही उस इंसान का चेहरा देख वो शदीद बदमज़ा हुआ। कम अज़ कम इस वक्त वो उस इंसान को नहीं देखना चाहता था। क्या लेने आए हो यहाँ? वो उस इंसान को यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम अकेले यहाँ की कुर्सी संभाल कर बैठे हो और मैं यहाँ कभी कभार भी नहीं आ सकता। सामने मौजूद शख्स ने उसको घूरते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में तंज का अंसर शामिल हाल था, या ये कहना दुरुस्त था कि ये सरासर तंज ही था जिसने मुकाबिल को तैश दिलाया। मगर वो हदीद आलम था, उसे सख्त गुस्से में भी पुरसुकून रहना आता था। तो तुम संभाल लो, सादा से लहजे में बोला, जैसे कोई बड़ा मसला ना हो। जिसका है उसको संभालने दो, तंजिया मुस्कुराहट सजाए बोला। उसे हदीद को जिच करने में हमेशा मज़ा आता था। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खैर से ये तुम्हारा ऑफिस तो नहीं है। लहजा हनूज सादा था, मगर अफान को उसका लहजा मजाक उड़ाता महसूस हुआ। क्यों? तुम्हारे बाप का ऑफिस है।
कुर्सी से उठते वो तैश में बोला तो हदीद का पारा हाई हुआ, मगर वो हदीद आलम था। अपने गुस्से और इश्तियाल को काबू करना उसे खूब आता था। वो एक अच्छा अदाकार था। वो क्या है ना कि तुम अपने बाप के ऑफिस भी नहीं जा सकते, तो मेरे बाप का ऑफिस हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अफ़ान की जैकेट का कॉलर ठीक करके वो सुकून से अपनी बॉस की कुर्सी पर जाकर बड़ा जवान हुआ और अफ़ान को उससे शदीद नफ़रत महसूस हुई। मैं देख लूँगा तुम्हें, शिद्दत से उसको घूरते हुए कहा, या शायद धमकी दी। तो देखो ना, मना किसने किया है? वैसे भी मुझे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। अब्रू अचकाकर खुद की जानिब इशारा करते हुए तंजिया बोला। वजीह चेहरे पे सजी उस तंजिया मुस्कुराहट से हमेशा अफ़ान को उलझन रही थी, मगर अब नफ़रत होना शुरू हो चुकी थी। बाहर में जाओ तुम, ये कहते ही वो ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा। दुआ तो अच्छी देते हो, उसकी तंजिया मुस्कुराती आवाज़ पे अफ़ान ने गुस्से से जबड़े भींचे और दरवाज़ा पटकता चला गया। एक सर्द आभरते हदीद आलम वापस अपनी रूटीन में आ गया। वो एक रोबोट था, ऐसा दुनिया कहती थी, मगर वो एक इंसान था जिसको कोई नहीं समझ सकता था। हल्की सर्दी के उस मौसम में जब सूरज की किरणें सुकून पहुंचा रही थी, उसी लम्हे शहर के मशहूर सैलून में दाखिल हुआ जाए तो संगे मरमर के खूबसूरत छोटे से टब के पानी में मौजूद सुर्ख गुलाब की नाजुक पत्तियों में अपने नाजुक पाँव डुबोकर बैठी वो उस सैलून की मैनेजर से मुखातिब दिखाई दी। अगली मर्तबा जब मैं आऊँ तो ये आइजल मुझे यहाँ नज़र ना आए। सैलून में काम करने वाली लड़की के हाथ से अपना हाथ खींचते हुए वो धमकी भरे अंदाज में गोया हुई। लड़कियाँ और उनका हसद, हाय! लेकिन मैम, मैं उनको कैसे रोक सकती हूँ? वो भी हमारी बाकायदा गाहक हैं। सैलून मैनेजर परेशान हुई। उन लड़कियों की ज़ाती नापसंदीदगी पे वो अपना कारोबार तो ठप करने से रही थी। ये मेरा मसला नहीं है। जितनी देर मैं यहाँ हूँ, अगर ये मुझे नज़र आई तो अगली बार तुम्हें नहीं बल्कि फ़ातिमा को कहूँगी। वो सैलून की मालकिन का हवाला देते हुए बोली, जिस पर मैनेजर सर को हाँ में हिलाते हुए वापस चली गई। उस लड़की से बहस करना फजूल था। नेल पेंट नहीं लगाना? लड़की को अदाई देती वो खीरे के गोल बारीक टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखते आंखें मूंद गई। लड़की उसका मैनीक्योर और पेडिक्योर कर चुकी थी, मगर वो आंखें मूंदे ही टेक लगाकर बैठी रही। शायद वो सो चुकी थी, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता था। क्या मैम को हिलाऊं? उस लड़की ने दूसरी लड़की के कान में सरगोशी के से अंदाज में कहा। आफत है पूरी, देखना शामत ही ना आ जाए, उसने अपने तही मशवरे से नवाजा। ठीक ही कह रही हो, वैसे मैं नहीं हिला रही। वो लड़की दूसरी गाहक के पास चली गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसकी अचानक आंख खुली। पास मौजूद अपने आईफोन पे वक्त देखते हुए वो हड़बड़ी में उठी। ये क्या डालते हो तुम लोग इन खीरों में? जब भी रखती हूँ नींद आ जाती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो ये बोल रही थी, वरना जानती थी कसूर उसका अपना ही है। माजरत मैम, लड़की ने माजरत करने में ही आफियत जानी। नूर, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम अभी तक सैलून में हो। इस आवाज़ पे उसने पढ़कर उसकी जानिब देखा। न जाने उसको कैसे इल्म हुआ कि वो यहाँ है। तुम मेरे जासूस हो क्या? जहाँ जाती हूँ तुम्हें पता लग जाता है। अपनी बड़ी आंखों को छोटा करके उसे घूरते हुए बोली, जिस पे तलहा ने फौरी बात बदली। चलो लड़की, टाइम ज़ाया नहीं करो, सब इंतज़ार करें। और ये क्या तुम तैयार भी नहीं हुई हो? वैसे मैं जानता हूँ कि हमारी नूर नेचुरल ब्यूटी क्वीन है, मगर फिर भी तुम्हें तैयार तो होना ही था। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। वो सैलून की लड़की को इशारा करके चला गया, जिसका साफ ये मतलब था कि जल्दी से नूर को तैयार करो। नूर को तो नींद आने की वजह से अब सुस्ती हो रही थी, मगर सब दोस्तों ने आज प्लान बनाया था तो जाना तो ज़रूरी था। वो खामोशी से बैठ गया और सैलून वाली ने मेकअप से उसके हसीन तरीन चेहरे को मज़ीद दिलफरेब बनाया। नूर मैम, आप सच में बहुत हसीन हैं, वो सच्चे दिल से बोली, जिस पर नूर के चेहरे की मुस्कान एक लम्हे को मानित पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुलकर मुस्कुराई। जानती हूँ, मगरूर अंदाज में बोली। यकीनन वो अपनी अहमियत जानती थी। मैम, क्या एक तस्वीर ले लूँ आपके साथ? उस लड़की ने उसे इल्तिजाई नज़रों से देखा। ले लो, क्या याद करोगी? अकड़ कर बोलते नूर ने उस लड़की के साथ तस्वीर खिंचवाई। ये लो, बिल काट लो इससे, अपना क्रेडिट कार्ड उसके सामने करते हुए कहा। नहीं मैम, हमें फ़ातिमा मैम ने मना किया कि आपसे बिल नहीं लेना। उफ, ये फ़ातिमा, चलो मैं खुद उससे बात कर लूँगी। अपने हल्के सुनहरी बालों को झटकते वो सैलून से बाहर की जानिब बढ़ी। अंदर मौजूद तमाम लड़कियों ने उसको काबिल रश्क निगाहों से देखा। वो मशहूर टिकटॉकर ज़खरफ नूर थी, जिसकी एक एक अदा पे लोग मरते थे। वो कुदरती हसीन थी, उसकी हर अदा मुकाबिल को ज़ेर कर सकती थी। वो अपने नाम की तरह सोना थी, वो ज़खरफ थी। दरवाजे को चाबी से खोलते वो एक बार फिर घर में आ चुकी थी। जैस्मीन को उसका यहाँ आना नहीं पसंद था, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए कोई मसला खड़ा कर देती थी, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी। हदीद कहाँ है?
بے دھڑک لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے وہ استفار کرنے لگی۔ آفس گئے ہیں، شائستگی سے انگریزی زبان میں جواب دیا۔ کنزا کے چہرے پہ موجود مسکان ایک پل میں ہی مانند پڑی۔ اچھا میرے لیے کافی بنا دو، میں حدید کے کمرے میں ہوں، وہیں لے آنا، اور ہاں اسی مگ میں لانا جو میں نے حدید کے لیے لے کر آئی تھی، پورے استحقاق سے کہتے وہ حدید کے روم کی جانب چل پڑی۔ میم، حدید سر نے منع کیا کہ کوئی ان کے کمرے میں نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں، خاصا جتاتے انداز میں بولتی ہوئی جاسمین اس وقت کنزا کو زہر لگی۔ اس کوئی میں شامل نہیں ہوں جاسمین، آئندہ خیال رکھنا، مجھے ٹوکنے سے باز رہنا، تنبیہی انداز میں کہتے وہ دھڑلے سے حدید کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھولا تو ایک عجیب سے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ حدید کے کمرے میں تھی، یہ احساس ہی اتنا خوشکن تھا، تو جب وہ حدید کی زندگی میں آئے گی وہ احساس کیسا ہوگا؟ وہ مسکرائی، اس کے خوبصورت چہرے پہ رعنائی بکھری، اپنی بھوری آنکھوں سے کمرے کو غور سے دیکھا۔ مکمل سیاہ رنگ سے سجا یہ کمرہ کبھی کبھار اسے خوف زدہ بھی کر دیتا تھا۔ وہ کیوں سیاہ رنگ سے اتنی محبت کرتا تھا؟ کنزا کو ہمیشہ اس بات کا تجسس رہا تھا۔ سیاہ فرنیچر، سیاہ ٹائلز، سیاہ پردوں سے سجا یہ سیاہ کمرہ بے حد نفاست سے سیٹ تھا۔ بلا ساختہ اسے حدید کی نفاست پہ رشک آیا۔ کتنی نفاست ہے نا تمہاری فطرت میں حدید، اپنی ہر شے کو سنبھال کر رکھتے ہو۔ کمرے میں موجود اس کی تصویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، پھر اس تصویر کو دیکھتے دل سے مسکرائی۔ یہ تصویر اس نے ہی زبردستی یہاں لگائی تھی، ورنہ اسے اپنی تصاویر کھنچوانا اور لائم لائٹ میں آنا نہیں پسند تھا، مگر وہ بھی کنزا ابراہیم تھی۔ حدید عالم کو ایموشنل بلیک میل کرنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ اس کے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ چکی تھی اور اس تصویر کو پوری دلجمی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس شخص کو وہ اس وقت سے چاہتی تھی جب اسے محبت اور انسیت میں فرق کا بھی علم نہیں تھا، اس وقت سے جب سے اس نے حدید عالم کو اپنی محفوظ پناہ گاہ پایا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی محفوظ پناہ گاہ میں رہنا چاہتی تھی۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا۔ آنے والے کو ہاں کہہ کر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ جاسمین ٹیبل پہ کافی رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر کافی کو دیکھا، پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اس مگ کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ کے ایک نمبر پر بھیجی۔ دوسری جانب لیپ ٹاپ پہ حرکت کرتی انگلیوں کی حرکت تھمی۔ ان انگلیوں میں سے ایک میں موجود سیاہ پتھر والی انگوٹھی لمحے بھر میں ساکت ہوئی۔ اس نے پاس موجود موبائل پہ آنے والے پیغام کو کھولا تو اس مگ کو دیکھ کر گہری آہ بھری۔ آہ کنزا! لو ٹک کے نظر آتے ہی کنزا نے فوراً اس کو کال کی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے کال ریسیو کی۔ دل تو چاہا کہ نہ کرے، مگر نہ جانے کیوں، لیکن وہ اسے اگنور بھی نہیں کر پاتا تھا۔ فون کی دوسری جانب سے کنزا کی خوشگوار آواز آئی، گیس واٹ، میں اس وقت کہاں ہوں؟ وہ اس سے اردو میں ہی بات کرتی تھی کیونکہ دونوں کو اردو آتی تھی۔ میرے گھر، حدید نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، کافی کا سپ لیتے اس نے حدید کے جواب کو رد کیا۔ لسن کنزا، میں بیزی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوا۔ لسن حدید، میں اس وقت تمہارے رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھی تمہارے کپ میں کافی پی رہی ہوں، شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ حدید کا جو کچھ ہلکا سا ٹھیک موڈ تھا وہ بھی خراب کر چکی تھی۔ کنزا! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا کنزا رابطہ کاٹ چکی تھی، جس پہ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس نے فوری طور پر جاسمین کو کال ملائی۔ مس جاسمین، یہ کنزا میم میرے کمرے میں کیسے پہنچی؟ خاصا روبدار لہجہ تھا۔ ایک پل میں جاسمین گڑبڑائی۔ سر، میں نے انہیں منع کیا تھا مگر انہوں نے مجھے دھمکی دے دی۔ میں کیا کرتی سر؟ اپنی طرف سے خاصا مضبوط جواز پیش کیا۔ آپ کو تنخواہ میں دیتا ہوں تو بات بھی میری مانا کریں، ابھی اور اسی وقت اسے میرے کمرے سے نکالیے۔ مگر سر، نو آرگیومنٹ۔ اس نے کھٹاک فون بند کیا تھا۔ جاسمین تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی تو وہ باہر آتی دکھائی دی، جس پہ اس نے سکون کا سانس بھرا۔ کنزا نے اس کی شکل دیکھی تو بے اختیار ہنسی۔ لگتا ہے مسٹر حدید کی جانب سے دھمکی مل گئی ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ خاصی پرسکون تھی۔ میم، برائے مہربانی آپ آئندہ سر کے کمرے میں نہیں جانا، ہماری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، وہ التجائی بولی۔ نوکری کا کیا ہے، دوبارہ مل جاتی ہے، بات تو دل کی ہے، آخری فکرہ منہ میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ نوکری مل جاتی ہے مگر حدید سر جیسا باس نہیں ملتا، کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، چلو میں چلتی ہوں، آئندہ نہیں جاتی تمہارے حدید سر کے کمرے میں۔ جاسمین کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے وہ پرمسرت سی واپس چلی گئی۔ وہ جو کرنے آئی تھی وہ ہو چکا تھا۔ پیچھے جاسمین نے سکون کا سانس بھرا۔ اوہ گاڈ، میری بچت ہو گئی، مگر پھر یاد آیا کہ یہ فکرہ اب تک کنزا نہ جانے کتنی ہی بار اسے بول چکی تھی۔ اس کا سارا سامان غارت ہوا۔ کیمروں کی روشنیوں میں وہ سب دوست ویڈیوز بنا رہے تھے، گانوں کی دھن پہ ٹک ٹاک بناتے وہ وجود گویا اہم فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔
दोबारा करो यार, मैं इसमें ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। फरवा ने वीडियो को मुस्तरद करते हुए कहा। जैसी हो वैसी ही लगोगी ना डियर, अहमद उसको चिढ़ाते हुए बोला। खबरदार जो मुझे मोटी कहा, तुम लोग सही से कैमरा ही सेट नहीं करते, इतनी बेढंगी वीडियो बनी है। वो सारा नुक्स कैमरों का निकाल गई। अगर वो मोटी नज़र आ रही है तो यकीनन कसूर कैमरे का या कैमरामैन का है। इस सारे कैमरे का कसूर ये है कि वो फिल्टर तो लगा रहा है मगर पतला नहीं करके दिखा रहा। वो नहायत अफसोस भरे लहजे में बोला तो फरवा ने उसकी कमर पर धप रसीद की, जिस पे वो मसनूई दर्द का मुजाहरा करने लगा। पास मौजूद उनके कैमरामैन इस सब से महजूज हो रहे थे। उन सब का प्रोफेशन एक था, इसीलिए सबकी आपस में बहुत बनती थी। वो टिकटॉकर्स थे। हमारी नूर कहाँ है यार? अमर ने इर्द गिर्द देखते ही इस्तफार किया। नूर जो तलहा को अंदर चलने का बोलकर खुद कॉल सुन रही थी, उसकी आंख पे सबकी निगाहें थम गई। सफ़ेद कढ़ाई वाली लंबी सफ़ेद कमीज़ के साथ नीली तंग जीन्स पहने, सीधे और मुलायम सुनहरी बालों को ढीले खम देकर कमर पे और चंद लिटों को आगे की जानिब बिखेरे वो नाजुक सी नूर आगे बढ़ रही थी। साफ शफाफ चेहरे पे हल्का सा मेकअप उसको दिलकश और दिलरुबा दिखा रहा था। से आंखों में सब्ज लेंस लगाए वो गोया बरआज़म एशिया की बजाय बरआज़म अमेरिका की मकीन दिख रही थी। गोया किसी गोरी को एशिया का लिबास पहना दिया गया। वो उन सब से मुनफरिद थी। हाई हील्स पहने एक अदा से कदम उठाकर चलती वो अपने दोस्तों में शामिल हुई। मेरी जान लोगी क्या नूर? अहमद ने उसको देखते दिल पे हाथ रखते कहा। तुम्हारी जान मेरे किसी काम की नहीं है, वो शाहाना अंदाज में बोली। जचता है तुम पे। वो उसके मगरूर अंदाज का भी गर्विदा हुआ। कोई नई बात करो यार, अच्छी है। अच्छा जल्दी से वीडियो बनाओ, शाबाश, मुझे भूख लगी है। आज नाश्ता बहुत हल्का किया था। पहले तुम खाना खाओगी नूर, वीडियो हम बाद में बना लेंगे, तलहा ने नहायत प्यार से कहा। उसकी सेहत उनकी वीडियो से ज़्यादा अहम थी। कोई मसला नहीं, अब इतनी भी भूख नहीं लगी। हाँ तुम कौन सा इस मोटी की तरह खाती हो? वो इस सब में फरवा को घसीटना नहीं भूला था। ये ज़ाया हो जाएगा किसी दिन मेरे हाथों, फरवा ने दांत पीसते हुए कहा, जिस पे सभी का कहका बुलंद हुआ। मगर नूर की हंसी बुलंद नहीं थी। वो कभी कहका नहीं लगाती थी। उसकी यही आदत उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। दोस्तों बाकी बात के लिए पहले वीडियोस बनाओ। उसकी बात पे सभी वापस वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हो गए। सबसे पहले नूर का स्लोमो बनाया गया। जिस अदा से वो सहज सहज कर चल रही थी, उस पार्क में मौजूद लोग रुक रुक कर उसको देखने लगे। 23 साल की नूर उस वक्त मुल्क की मशहूर शख्सियत थी। टिकटॉक ना देखने वाला भी उसको जानता था, क्योंकि उसके हुस्न के चर्चे हर एक की ज़बान पे थे। स्लोमो के बाद उन सब ने मिज़ाहिया डायलॉग्स पे वीडियोस बनाई। तकरीबन 8 वीडियोस बनाने के बाद अब वो लोग शदीद थक चुके थे। कई बार रीटेक के बायस उन 8 वीडियोस को रिकॉर्ड करने में 4 घंटे सर्फ हो चुके थे। अब भूख ने उनको सताया। नूर तलहा की गाड़ी में बैठी और फरवा अहमद की गाड़ी में, और वो सब रेस्टोरेंट की जानिब रवाना हुए। कैमरामैन चूँकि उनके करीबी दोस्त ना थे, इसलिए वो बस काम की हद तक साथ होते थे। उनकी गाड़ियाँ एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। यह भी नूर की ही पसंद का रेस्टोरेंट था। वो अपनी नूर को इनकार नहीं करते थे। टेबल की तरफ जाते हुए भी कई लोग उनके साथ तस्वीर बनवा चुके थे। उनके लिए यही एक बामकसद ज़िंदगी थी, जिसको वो सरेआम धड़ल्ले से जी रहे थे। वो घर दाखिल हुआ तो लाउंज में रुकते जैस्मीन को मुखातिब किया, जिस पे उसने फौरी जवाब दिया। जी सर, नहायत ताबेदारी से कहा। आइंदा अगर कोई भी मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो आप इस घर में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगी। वो उंगली उठाकर तनबीही अंदाज में गोया हुआ। ख्याल रखूँगी सर, जैस्मीन ने ताबेदारी से जवाब दिया। आपको कहना है कि अब कभी नहीं होगा। अपनी हल्की भूरी आंखों से उसको देखते सख्त लहजे में गोया हुआ। कभी नहीं होगा हदीद सर। जैस्मीन ने उसके अल्फाज दोहराए तो उसने उनकारा भरा। सर आपके लिए दावतनामा आया है। उसके बढ़ते कदमों को जैस्मीन के अल्फाज ने रोका। लाउंज के टेबल पर मौजूद कार्ड की इत्तला मिलते उसने बेदिली से उसको खोला। उसको किसी तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। उसने कार्ड उठाया और अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में पहुंचकर एक दराज खोला, जिसमें पहले से ढेर सारे कार्ड्स मौजूद थे। उसमें उस कार्ड को रखा। वो यकीनन उस तकरीब में भी नहीं जाने वाला था। उसने आगे बढ़ते राइटिंग टेबल से उस मग को उठाया, एक गहरी आह भरी और बाहर आया। जैस्मीन के सामने डस्टबिन में उस मग को फेंकने के बाद वो तसल्ली से वापस अपने कमरे में चला गया। और जैस्मीन अच्छी तरह जानती थी कि वो अपनी चीज़ किसी दूसरे के इस्तेमाल में आने बाद उसको अपने पास नहीं रख सकता था। ये उसका गरूर नहीं था, ये उसकी आदत थी। कमरे में आकर कोट को उतारकर अलमारी में लटकाने के बाद वो शावर लेने चला गया। टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस वो आरामदेह से फ्लोर कुशन पे बैठ गया। उस वक्त वो सिर्फ सोचना चाहता था, इसलिए हर मशीनी आला को बंद कर चुका था।
बेड के साथ टेक लगाकर फ्लोर कुशन पे बैठा हदीद जिंदगी की भूल भुलैयों में गर्क हो चुका था। उस वक्त हदीद आलम अपने असल रूप में था, हर मसनूई फन से पाक। पाकिस्तान के मैनचेस्टर, फैसलाबाद की सुरमई तारकोल की सड़क पे उनकी सफ़ेद खुली छत वाली गाड़ी रवां दवां थी। हवा के दोष पे उसके सुनहरी बाल लहरा कर दीदा ज़ेब मंजर पेश कर रहे थे। सर्दियों की आमद की पुरसुकून ठंडी हवा सरूर बख्श रही थी। तबीयत ताज़ा हो चुकी थी। वो वापस घर की राह ले रहे थे जब नूर ने तलहा को उसके नाना के घर छोड़ने का कहा। यार कभी मेरी भी मुलाकात करवा दो अपने नाना से, 2-4 तस्वीर उनके साथ लूँगा तो मशहूर हो जाऊँगा, वो उसकी मदद करते हुए बोला। आखिर किसको शौक़ नहीं था मशहूर होने का, और शोहरत तो पहले है ही अजीब सरूर बख्श है। नाना जान खुद तुमसे मिलेंगे नहीं, और मैं कभी उनसे कहूँगी नहीं कि वो तुम जैसे नमूने से मिले। वो उसको छेड़ने लगी या शायद हकीकत से आगाह करने लगी। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम, अपने दोस्त की कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं होती, तलहा जले दिल से बोला। आखिर को उसे भी ये मौका मिलना चाहिए था ताकि वो भी शो मार सके। दोस्त खुद मेहनत कर ले और मिल ले मिनिस्टर दानियाल कमाल से। फखरिया अपने नाना का नाम लेते उसको बावर कर रहा है कि मेरे नाना कोई आम इंसान नहीं है और वो हर अरे गहरे से नहीं मिलते। पता नहीं कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे अजीम नाना जान दानियाल कमाल से मिलने के लिए। दिल के पपोले पोड़े। आखिर वो भी एक मशहूर टिकटॉकर था, बहुत ज़्यादा न सही लेकिन उसके भी कहीं फॉलोअर्स थे। राज की बात बताऊं? नूर राजदाना लहजे में बोली। हाँ हाँ बताओ जल्दी, निगाहें सड़क से हटाकर उस पर मरकूज़ करते हुए बोला। मेरे नाना जान को मजबूत लोग पसंद हैं, जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहने वाले हों। दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखने वाले ही पसंद है मेरे नाना जान को। नाना की बात करते हुए उसकी आंखों से अकीदत झलक रही थी। वाह भाई, गौर से नाना का म्यार जानने के बाद नज़रें वापस सड़क पर टिकाई। और खैर से तुम किसी भी तरह उन लोगों में शामिल नहीं होते तो भूल जाओ कि मेरे नाना जान तुमसे मिलेंगे। नूर ने यूँ कहा गोया बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तुम तो फिर अपने नाना के म्यार पे पूरा उतरती हो। उसके जवाब को इग्नोर करता दाद देते हुए गोया हुआ। वो भी तो दुनिया को जूती की नोक पे रखती थी। कोई शक नहीं। चेहरे की मुस्कुराहट मानत पड़ी मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट दोबारा लौट आई, लेकिन अब की बार उस मुस्कुराहट में कुछ बदलाव था। लो आ गया तुम्हारे नाना जान का घर, अब तुम ही गेट खुलवाओ। शानदार बंगले के बाहर गाड़ी रोककर उसको घर कहते हुए नूर को वो शदीद बेवकूफ़ लगा मगर वो खामोश रही। अब आखिर उसने लिफ्ट दी थी, इतनी मुरब्बत तो नूर ने ज़रूर दिखानी थी। मैं तो नहीं लेकर जा रही तुम्हें अंदर, निकलो शाबाश। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते उसको हरी झंडी दिखाई। वो खुद ही अंदर जाने का इरादा रखती थी। अल्लाह पूछे तुम्हें नूर, बहुत खुदगर्ज हो तुम। आसमान की जानिब इशारा करते रूहान से लहजे में बोला। कोई शक? एक अदा से कहकर वो अंदर बढ़ गई क्योंकि चौकीदार जान चुका था कि घर की लाडली तशरीफ़ ला चुकी है। और तलहा ख़राब मूड के साथ गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब मोड़ गया। हाई हील से टिक टिक करके चलते हुए वसी और अरीज लॉन से गुजरते हुए उसने ज़रा को निगाह उस जानिब की, मगर मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों और क्यारियों से सजा ये शानदार लॉन किसी को भी अपनी जानिब माइल कर सकता था, मगर उसके लिए ये अब कोई ख़ास तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा था। एक वक्त था जब वो भी उस लॉन में खेलती थी। आंखें बंद करने पे कुछ मंजर निगाहों के पार लहराए जिन पे वो धीमा सा मुस्कुराई, फिर आंखें खोलकर लॉन को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए उसे अबूर करते मरकज़ी दरवाजे पे पहुंची। हिफाजत पे मामूर गार्ड्स में से एक ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसने अभी अंदर कदम रखा ही था जब अंदर बढ़ते उसके कदम उस वजूद को देखकर साकित हुए। आंखों में किसी का अक्स आया हुआ अफसोस एक साया बनकर चुपके से उसके पास आ खड़ा हो गया, जिसको उसने भरपूर नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ माइदा बेगम ने जब उसे यहाँ देखा तो दीवाना वार भागते हुए उसकी जानिब आई और एक लम्हे में उसके हसीन चेहरे पे तमाचा रसीद कर दिया। अचानक पड़ने वाले उस थप्पड़ ने पहले चंद लम्हे नूर को सोचने समझने की सलाहियत से दूर किया, लेकिन चंद लम्हों में ही वो वापस अपने हवास में लौटी। उसने शिद्दत ज़ब्त से जबड़े भींचे। ये दूसरी मर्तबा हुआ था। उसे उस वक्त अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि जिसने यह तमाचा उसके मुंह की जीनत बनाया वो अब गहरे अताब का शिकार होने वाली थी। आ गई मनूस, मेरा बेटा खा गई। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? वो फिर से उसकी जानिब लपकी, लेकिन इससे कबल ही गार्ड उनका हाथ थाम चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? वो घराते हुए बोली। सॉरी मैम, लेकिन आप नूर मैम को हाथ भी नहीं लगा सकती और आपने थप्पड़ मार दिया। उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। वो माइदा को समझाने की घर से कह रहा था, माना कि वो एक माँ थी और उन्होंने अपना बेटा खोया था, लेकिन उन्हें यह भूलना चाहिए था कि उस घर के मालिक की जान नूर में बसती थी। आप जाइए, मैं देख लेती हूँ।
नूर ने गार्ड को जाने का कहा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तमाशे की खबर दानियाल कमाल तक पहुंचे। मैं नहीं जा सकता मैम। मुझे दानियाल साहब ने सख्त ताकीद की है कि मैं हर उस इंसान का हाथ तोड़ दूं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाने का बाइस बने। वो दानियाल कमाल का हुक्म सुनाने लगा और एक गार्ड यही तो करता था, हुक्म बजा लाता है। ये मेरी ममानी है और तुम इन्हें मेरे सामने ही धमकियां दे रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो चिंघाड़ते हुए बोली। गार्ड ने मायदा बेगम का हाथ छोड़ा, जो सदमे से उस सुर्खी को देख रही थी जो उस गार्ड के सख्त हाथों के बायस उनके नरम हाथों पे दराई थी। खबरदार, खबरदार जो तुमने इस थप्पड़ का जिक्र किसी से भी किया। याद रखना, मैं मिनिस्टर दानियाल कमाल की इकलौती नवासी हूँ। जान निकालूंगी तुम्हारी और तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। उंगली उठाकर तनबीही अंदाज में गोया हुई। सच कहते थे सब। ज़खरफ नूर ने गरूर और रोब व दबदबा अपने नाना से विरासत में लिया था। ओके मैम। रोबोट की मानिंद उसके हुक्म पे हामी भरता वो चला गया। वो उस लड़की को इनकार करके अपनी शामत नहीं ला सकता था। पीछे नूर ने अफसोस से इस वाक़ये को याद किया जब उस पे हाथ उठाने के नतीजे में मायदा बेगम को सज़ा भुगतना पड़ी थी। वो खामोशी से आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दानियाल कमाल का कमरा बलाई मंजिल पे था और उस बंगले के मकीन अपने साउंड प्रूफ कमरों में ही बंद रहते थे। उसने एक नज़र ममानी पर डाली और सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपर जाने लगी। वो अपनी ममानी को कुछ नहीं समझा सकती थी। उसे अब उनके उस रवैये को बर्दाश्त करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं कसूर उसका भी था, वरना वो किसी के बर्दाश्त करने वालों में से कहाँ थी। दरवाज़ा वाह होते ही घूप अंधेरे ने उसको खुश आमदीद कहा। उस अंधेरे की यही तो खासियत होती है कि रोशनी को देखते ही फुर्ती से गायब हो जाता है, गोया कभी था ही नहीं। उसने आंखों को बंद करके दोबारा खोला तो मंजर कुछ साफ हुआ। लाइट जलाते और दरवाज़ा बंद करते वो आगे बढ़ा और खामोशी से जाकर कमरे के दरमियान में मौजूद कालीन के टुकड़े पर बड़ा जमान हुआ। उस छोटे से कमरे में उस कालीन और एक पुराने बैग के अलावा कुछ ना था। उस कालीन पर बैठकर वो उस बैग से चीज़ें निकाल कर देखने लगा। कई मंजर निगाहों के सामने चलने लगे। हर एक चीज़ से एक याद वाबस्ता थी, और याद भी ऐसी जो याद बनकर दिल को बहरान कर रही थी। उन यादों को हकीकत का रूप होना चाहिए था, मगर वो सिर्फ एक पुरानी याद थी, एक ख्वाब की मानिंद, धुंधली, बेरब्त और बेहंगम। वो चीज़ों को वापस बैग में डालकर उसे उसकी मखसूस जगह पर रखने के बाद लाइट बंद करके कमरे से बाहर आया और उसके दरवाजे को मुक़फ़ल किया। छोटा सा ये कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। अपने मकीन की हालत पे खून के आंसू बहाता ये कमरा एक बार फिर अफसोस से उस शख्स को देखने लगा। उस शख्स की हालत काबिले रहम होती थी जब भी वो यहाँ आया था, लेकिन वो यहाँ आया था, बार बार आता था, क्योंकि वो ये सब भूलना ही नहीं चाहता था। उसे ये सब फरामोश नहीं करना था। उसे बार बार खुद को ये याद दिलाना था कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। हदीद आलम को वो सब नहीं भूलना था और ना भूलने देना था। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देते वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की तेज़ आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। उसने दाखिल होते एक लाइट बंद की। दानियाल कमाल, जो फ्रेमलेस नज़र का चश्मा नाक पे टिकाए किताब के किसी सफ़े पे निगाह दौड़ाते माथे पे शिकनों का जाल बनाए बैठे थे। लाइट के बंद होने पे ही उनके चेहरे पे शफीक सी मुस्कान दौड़ी। उनकी ख्वाहिशात को रद्द करने का हक़ सिर्फ नूर का था और वो धड़ल्ले से ये हक़ इस्तेमाल भी करती थी। मेरा नूर, किताब को उल्टा करके मेज़ पे रखते और चश्मे को उतार कर उस किताब के ऊपर रखते उन्होंने मोहब्बत से पुकारा। मिनिस्टर साहब, इतनी तेज़ रोशनी से आपके सर में दर्द नहीं होता? हाथों को कमर पे धरे वो अबरू अचकाए सवाल कर रही थी, क्योंकि दानियाल कमाल से सवाल भी सिर्फ नूर ही पूछ सकती थी। जब मेरा नूर घर नहीं होता तो रोशनी तेज़ रखता, लेकिन जब मेरा नूर आ जाता है तो मुझे इतनी रोशनी की ज़रूरत नहीं रहती। यह नहायत प्यार से कहते उन्होंने अपनी बाहें वाकी तो नूर उनके गले लगी, जिस पे उन्होंने उसके सुनहरी बालों पे बोसा दिया। नाना जान, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। निचले होंठ को बाहर निकाल कर कहते हुए वो बिल्कुल छोटी बच्ची लगी, जिस पे उन्हें टूटकर प्यार आया। इसीलिए 1 महीने से नाना से नहीं मिली, उन्होंने मोहब्बत भरा शिकवा किया। आपको पता तो है नाना जान कि मामा मुझे यहाँ आने से रोकती हैं और आप हमारे घर आते ही नहीं हैं, वो भी जवाबन शिकवा करने लगी। तुम्हारी मामा को मेरा भी वहाँ आना नहीं पसंद, सपाट चेहरे से कहते हुए वो नूर की जानिब देखकर मुस्कुराए। नूर अब उनके बराबर वाले सोफे पर बैठ चुकी थी, क्योंकि मामा आपसे जेलस होती हैं, उन्हें पता है मैं आपको उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, शरारत से कहते हुए वो संजीदा माहौल को मज़ा में ढालने की कोशिश करने लगी, या शायद अपनी माँ का दफ़ा कर रही थी। शायद, कंधे अचका कर कहा। फिर वो नूर से उसकी पढ़ाई और दीगर सरगर्मियों के मुतालिक पूछने लगे और नूर सफाई से टिकटॉक के अलावा सारी रुदात सुनाने लगी और वो मुस्कुराकर उसकी बातें सुनते रहे।
آپ کو پتہ ہے اس پولیس والے نے میری گاڑی روکنے کی کوشش کی تو میں بھی اس کو ڈاج دیتے بھاگ نکلی۔ وہ مزے لے لے کر اپنے کارنامے گنوا رہی تھی۔ تیز رفتار سے گاڑی نہیں چلایا کرو نور، وہ اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ انہیں نور بہت عزیز تھی، وہ کوئی لاپرواہی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ جو گاڑی میرے پاس ہے نا وہ تیز چلتی ہی نہیں ہے، مذاق میں کہتے ہوئے افسوس کا عنصر بھی شامل تھا۔ دانیال کمال کا دل چاہ کے خود کو لعنت کرے۔ نور جس گاڑی پہ ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری ہوگی، کیوں نہیں لے رہی اپنے نانا سے؟ وہ پرشکوہ لہجے میں مستفسر ہوئے۔ کئی بار وہ اس کو گاڑی تحفے کے طور پر بھی دے چکے تھے مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی یا تحفہ واپس لوٹا دیتی تھی۔ میں ماما کو ناراض نہیں کر سکتی، صاف گوئی سے بولی، لیکن نانا کو تکلیف دے سکتی ہو۔ میری منسٹر دانیال کمال کی اکلوتی نواسی کھٹارا گاڑی استعمال کر رہی ہے، وہ اپنے سینے پہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، گویا انہیں گوارا نہ تھا کہ وہ ایسی فضول قسم کی گاڑی استعمال کریں۔ وہ بابا کی گاڑی ہے، بابا پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اسے شاید برا لگا تھا اپنے بابا کی گاڑی کی توہین ہوتے ہوئے دیکھ کر، لیکن اس سب میں تم اپنے نانا کو ناراض کرتی ہو۔ وہ پھر بھی بازیدی تھے۔ آپ مان جاتے ہیں نانا، ماما نہیں مانتی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا کرتی وہ بھی؟ دنیا میں جن دو لوگوں سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ دونوں آپس میں مل کر ہی نہیں راضی تھے۔ دیکھتا ہوں کب تک ضد میں رہے گی، چیلنجنگ انداز میں گویا ہوئے۔ آپ کی بیٹی ہیں، ان کی ضد آپ سے بھی پکی ہے، مسکراتے ہوئے باور کروایا۔ اور تمہاری ضد؟ متجسس ہو کر پوچھا۔ میری ضد؟ وہ سوچنے والے انداز میں بولی۔ میری ضد ایسی ہے کہ میرے سامنے میرا کوئی اپنا بھی مر رہا ہو تو اس کو مرتا چھوڑ دوں گی۔ بچانے کی صلاحیت بھی ہوئی تو بچاؤں گی نہیں بلکہ اس کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی، وہ سنجیدہ چہرے اور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آنکھیں ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دانیال کمال کا سانس اٹکا۔ وہ اس حد تک بے حس کیسے ہو سکتی ہے؟ نور یہ مذاق ہے نا؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا۔ نور گھبراہٹ سے بھرپور پکارا، آف کورس نانا جان مذاق ہے، میں تو چڑیا کو بھی مرتا نہیں دیکھ سکتی، اور کسی اپنے کو تڑپ کر مرتے دیکھنا یہ تو نہایت ہی سفاکیت کا کام ہے، وہ جھرجھری لے کر بولی تو دانیال کمال نے سکھ کا سانس بھرا۔ اچھا چلو اب کھانا کھا لو، وہ ملازمہ کو بلانے کے لیے انٹرکام اٹھاتے ہوئے بولے۔ نہیں نانا جان، میں نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اب میں گھر جاؤں گی، ماما اکیلی ہوں گی۔ ٹھیک ہے بچے، اللہ کی امان میں۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر پیچھے ہوئے۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتے کمرے سے باہر آ گئی۔ نیچے آئی تو مائدہ ابھی تک وہیں صوفے پر ڈھیر تھی۔ اسے دکھ ہوا لیکن پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے اس کو گھر اتارا اور چلا گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تو یہ تھی اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ناول کس قسم کا ہے، کیا صورتحال ہے، اور مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن ہوپ فلی کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا مزید پڑھیں گے ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور آپ لوگوں کو یقیناً یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تھوڑا بہت تو اچھا لگ رہا ہے، نئے دور کا ناول ہے، ٹک ٹاکرز ہیں اندر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میں یہی بتا رہی ہوں کہ میں شارٹ ایپیسوڈز ہی دیا کروں گی، کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے تک کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دیا کروں، آئی مین ٹو سے کہ 3 ویڈیوز دیا کروں تو 20-20 منٹ کی ہوں۔ تو پھر دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔